Is the study of the living organism. The detailed description of their form and the appearance only brought out the diversity. It is the cell theory that emphasizes the utility underlying the diversity form, cellular organization of all the forms. जो भी हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ फॉर्म्स का, उसको बेसिकली ब्रॉडली हम इसमें देख सकते हैं. A description of a cell structure and the cell growth by the division is given in this chapter. Comprises this unit. Cell theory is also created the sense of the mystery around the living world phenomena, physiological and behavioral process. This mystery was required meant of the integrity of the cellular organization of the living phenomena to demonstrate. In studying understanding the physiological behavioral processes, one can take physiochemical approach, use cell-free system basically, and anyone can use the cell-free system to investigate what the cell structure is and क्या क्या हमारे basically processes हैं. This approach enables to describe the various processes in the living molecular terms. Approach establish the analyzing of the living organism and the tissues for the elements and the compound. It will tell us what type of the organic compound are present in the living organism. In the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside a cell, and in what way they carry out the physiological processes like the digestion, excretion, memory, defense, recognition. Basically ये सब कैसे होते हैं. In other words, we can answer the question what the molecular basis of the physiological process. It can also explain the abnormal process that occur during any disease condition. Physiological approach to the study and understand living organism is called as reductionist biology. जो फिजियोलॉजिकल अप्रोच होती है टू स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं. द कॉन्सेप्ट technique of the physics and the chemistry are applied to understand the biology. In the chapter 9, this unit describe brief description of the biomolecules is provided. अब हम इन भैया को देख लेते हैं. ये भैया जो हैं GN रामचंद्रन है. इन्होंने क्या किया था, आउटस्टैंडिंग फिगर इन द, बेसिकली इस पे क्वेश्चन आता है. एक नीट के किसी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया है रामचंद्रन प्लॉट पे. ठीक है, डू रिमेंबर दिस. रामचंद्रन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर. बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर पे इन्होंने बहुत काम किया था. ठीक है, फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ द बायोपॉलीमर. बायोपॉलीमर का बेसिकली ये फाउंडर थे मद्रास स्कूल. हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर. इनका जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर था उसका इन्होंने डिस्कवरी किया था. नेचर इन 1954. हिज एनालिसिस अलाउड द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. जो बेसिकली कॉन्फर्मेशन थे प्रोटीन्स के वो हम देख पाए थे. रामचंद्रन प्लांट रैंकिंग अमंग्स द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर. बेसिकली प्रोटीन के बारे में अगर बात होती है तो रामचंद्रन प्लॉट एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. ठीक है, he was born on the October 8, 1922 in a small town not far from the Cochin on the southwestern coast of the India. His father was a professor. ये उनके घर वालों के बारे में है, ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे. बेसिकली इन्होंने क्या किया था वो फंक्शन इंपॉर्टेंट है. He was interested in mathematics. After completing his school, Ramachandran graduated in 1944, top ranking student in the BSc honors physics course of the University of the Madras. He received PhD from the Cambridge University. ये सब कुछ भी नहीं पूछने लायक है. बेसिकली जो आपका पूछा जाएगा वो ऊपर था. और यहाँ पे रामचंद्रन met Linus Pauling was deeply influenced by his publication on the alpha helix and beta sheet structure that directed his attention solving the question of the structure of the collagen. This is important. Okay, directed his attention on to solve the structure of the collagen. He passed away on the age. ये पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे जो रामचंद्रन प्लॉट के बारे में प्रोटीन का कंफर्मेशन हम इन्होंने कंफर्म किया था वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, द सेल्स द यूनिट ऑफ द लाइफ. व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स. यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड yourself what it makes an organism living or what it is an inanimate thing that does not have which a living thing has. The answer to this is the presence of the basic unit of the life, the cell in the living organism.
द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनिज्म वो सेल्स के ही बने हुए हैं, ठीक है। दे माइट बी यूनिसेलुलर वाइल द अदर ऑर्गेनिज्म मे बी मल्टीसेलुलर। देन यहाँ पे भी कुछ पूछने लायक नहीं है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। Unicellular organism independent, existent, and performing essential functions of the life. Anything less than that complete structure of a cell does not ensure independent living. ठीक है, कुछ भी अगर आपका एक कंप्लीट सेल से कम अगर कोई भी चीज़ है तो वो लिविंग नहीं हो सकती, ठीक है, इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्ट नहीं हो सकती उसमें। हेंस द सेल इज़ द फंडामेंटल, जो सेल होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एंटोन वन लीवनहुक was the first to saw and describe a live cell। एक लाइव सेल को देखा उन्होंने, जिंदा सेल को देखा था एंटोन वन लीवनहुक ने। जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने हमारा न्यूक्लियस देखा था, ठीक है। Invention of the microscope and improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail। मैथली शील्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट, ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो कि टिश्यू बना रहा था अलग अलग प्लांट के, ओके। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर शशान, एक थियोडर शशान थे हमारे सेकंड साइंटिस्ट होंगे। थियोडर शशान, a British zoologist, studied different types of the animal and reported cells that had thin outer layer which is today known as plasma membrane। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी, ठीक है, थियोडर शशान ने। और जो हमारे मैथली शेल्डन थे उन्होंने बेसिकली सारे प्लांट सेल्स को देखा, आर कंपोज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू, जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर शचान, उन्होंने आपकी सेल मेम्ब्रेन देख ली, ठीक है। बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर। अब इन्होंने प्लांट टिश्यू हालांकि बहुत देखे थे, तो इन्होंने कहा कि जो सेल वॉल का प्रेजेंस होता है वो एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल्स का, ठीक है। Shachan proposed the hypothesis that the bodies of the animal and the plant are composed of the cells and the products of the cell। थियोडोर शचान शील्डन, शचान मैथला शील्डन एंड थियोडोर शचान दोनों ने बेसिकली सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया। फिर उसके दिस थ्योरी वाज डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द सेल्स वर फॉर्म, इसमें ये नहीं पता था कि सेल्स बनते कैसे हैं। तो भैया रिडोल्फ वर्चो आ गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओके। He modified his hypothesis in the Sheldon-Sachan to give the theory a final shape। सेल थ्योरी अगर हम अभी देखें क्या है सेल थ्योरी, वो ये है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली सेल से ही बने हुए हैं। और जो जो भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग कोई ना किसी पुराने सेल से डिवाइड करके ही बनते हैं, ठीक है। देन ओवरव्यू ऑफ अ सेल, अगर हम सेल्स का ओवरव्यू लेते हैं तो ये हमारा ऑर्गेनिज्म के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन है। You have earlier observed an onion peel or the human cheek cells under the microscope। Let us recollect the structure onion cell, which is typical plant cell। Onion cell basically plant का है, has distinct cell wall and the outer boundary and the outer membrane as delimiting structure। basically जो cell को limit करता है वो structure होते हैं हमारे। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। एक dense membrane bound structure उसके अंदर होता है जिसको हम nucleus कहते हैं, ठीक है। This nucleus contains the chromosome which in turn contains the genetic material। इसके अंदर बेसिकली आपकी क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल होंगे। DNA cells have the membrane bound nuclei called eukaryotic। जिसमें बेसिकली आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा वो यूकैरियोटिक है, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा वो हमारा प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। देन इन बोथ प्रोकैरियोटिक, जो हमारे प्रोकैरियोटिक हैं और यूकैरियोटिक हैं, उनमें सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि पूरे वॉल्यूम ऑफ द सेल, जैसे मान लो एक कमरा है उसके अंदर जितना भी स्पेस है, एक कमरा आप सेल को इमेजिन कर सकते हो, अंदर उसके अंदर जितना भी स्पेस है वो साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है, और वो एक बेसिकली मोशन में रहता है कंटिन्यूअस, ठीक है। और इस तरह के मोशन को आप ब्राउनियन मोशन से रिलेट कर सकते हैं। occupies the volume of the cell। cytoplasm is
main arena of the cellular activity. Both the plant and the animal various chemical reaction occur in it to keep the cell in the living state. और साइटोप्लाज्म में कईयों आपकी reactions होती हैं जिसकी वजह से वो living रहता है. Beside nucleus, eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles, prokaryotic cell, and lack of such membrane-bound organelles. Now, ribosomes are non-membrane bound organelle. देखिए इस पे क्वेश्चन कईयों बार बनता है, ठीक है. फाउंड इन ऑल सेल, हर सेल में मिलेगा आपको राइबोसोम, ठीक है, लेकिन वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. बोथ द यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, डज नॉट डिपेंड, ठीक. विद इन द सेल, अगर आप सेल के अंदर देखो जो राइबोसोम है, दे आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म बट विद इन द टू ऑर्गेनल्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड मिटोकॉन्ड्रिया ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. तो जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं, आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मिलेंगे. द एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल दैट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन. जो एनिमल सेल होता है वो एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रखेगा जो कि बेसिकली सेंट्रियोल होता है. सेंट्रियोल अगेन इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि हेल्प करता है हमारा सेल डिवीजन में, ठीक है. सेल डिफर ग्रेटली इन द साइज, एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन द लेंथ. जो माइकोप्लाज्म होता है वो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर का होता है. वाइल द बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया का सेल थोड़ा बड़ा होता है. आइसोलेटेड, अगर आप सबसे बड़ा सेल देखना चाहो, लार्जेस्ट सेल अभी तक का जो हमने ऑब्जर्व किया है वो है सेल होता है ऑस्ट्रिच का, ओके. Among the multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर. जो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स हैं वो 7.0 माइक्रोमीटर के हैं. नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल. नर्व सेल्स बेसिकली हमारी लॉन्गेस्ट सेल्स हैं. सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन द शेप एंड द साइज. दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडियल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर. The shape of the cells may vary within the function they perform. They might vary, ठीक है. The prokaryotic cell, जो basically हमारे prokaryotic cells होते हैं, that are represented by the bacteria, blue green algae, mycoplasma, pleuropneumonia like organism. ये सब हमारे prokaryotic cells हैं, okay. Okay. दे आर जनरली स्मॉलर, वो बेसिकली स्मॉल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. दे आर मोर रैपिडली मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोट. बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे ये जितने भी बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन अलगा, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसका फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन टाइप का आ जाता है. मे वेरी ग्रेटली इन द शेप और द साइज. इनका शेप और साइज बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, नॉट अ बिग मैटर. The four basic shape of the bacteria are bacillus. Bacillus मतलब होता है rod like, ठीक है. Coccus, coccus that is spherical, ठीक है. Vibrio, vibrio होता है कॉमा, ठीक. Spirillum, spiral form, ठीक. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of the shape and the function. All the prokaryotes have the cell wall surrounding the cell membrane. जितने भी prokaryote हैं वो कुछ ना कुछ basically cell wall होती है, ठीक. जितने भी prokaryote हैं उनमें cell wall होगी surrounding the cell membrane except in the mycoplasm. mycoplasm एक exception है. जितने भी prokaryote तुमको मिलेंगे उसमें भाई cell wall जरूर होगी. The fluid matrix फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर आपका मैट्रिक्स जो होगा वो साइटोप्लाज्म का होगा. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन सेल वॉल है. और वह सेल वॉल किस में नहीं है, वो माइकोप्लाज्म में नहीं है. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा. द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड. जो जेनेटिक मटेरियल आपका उसमें सेल के अंदर प्रेजेंट होगा वो बेसिकली नेकेड होगा. वो ऐसे ही मतलब बिना किसी इन्वेलप के होगा, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी. एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए. जीनोमिक डीएनए के साथ साथ उसमें
Single chromosome circular, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These small DNA are called as plasmid. देखो एक तो उनके पास जीनोमिक डीएनए होगा, ठीक है, जीनोमिक डीएनए कहीं ना कहीं पड़ा होगा, लेकिन एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए उनके पास होता है, जिसको हम देखो, इन एडिशन जीनोमिक डीएनए जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम का हो सकता है, या फिर वो सर्कुलर डीएनए हो सकता है, जीनोमिक डीएनए, ठीक है। अब जीनोमिक डीएनए के साथ साथ एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक phenotypic character, बेसिकली कुछ पर्टिकुलर phenotypic character कन्फर करता है टू सच बैक्टीरिया। वन सच बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक, और ये बेसिकली आपका इन्हीं में मिलता है प्लाज्मिड्स में, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट द प्लाज्मिड। डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो डीएनए है हमारा वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं विद द फॉरेन डीएनए, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हिंट देना चाह रहा है। नो ऑर्गेनल लाइक वन इन द यूकैरियोट, कोई भी ऑर्गेनल जैसे यूकैरियोट में होते हैं आर फाउंड इन द, कोई भी मतलब हर चीज़ अलग होती है, सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जो बेसिकली राइबोसोम है, जो सर्वव्यापी है, मतलब हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में हर सेल में मिल जाएगा, प्रोकैरियोट में भी। प्रोकैरियोट हैज समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन, कुछ बेसिकली इंक्लूजन्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। इंक्लूजन्स आर द स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द, इंक्लूजन क्या होते हैं, इंक्लूजन बेसिकली एसेंशियल इनफोल्डिंग होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, जो कि बेसिकली डिफरेंशिएट होते हैं सेल मेम्ब्रेन से ही, जैसे मीजोजोम हो गया, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके प्रोकैरियोट्स की। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा बेसिकली एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हमारा बना के इन्होंने दे दिया। ऊपर एक टिपिकल बैक्टीरिया है जो कि 1 to 2 माइक्रोमीटर का है, प्लूरोनिमोनिया लाइक, मतलब ये साइज के बारे में बेसिकली यहाँ पे समझा रहे हैं, ओके। नाउ सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, सेल के जो इन्वेलप है और उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन है अगर उसको देख लेते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो हमारी सेल इन्वेलप बैक्टीरियल, बेसिकली प्रोकैरियोट के बारे में ही बात हो रही, रिमेंबर दैट, ओके। प्रोकैरियोट के पास सेल वॉल है, आपने पढ़ा था, मेम्ब्रेन पढ़ी थी। जो सेल इन्वेलप होती है प्रोकैरियोट की, जो बेसिकली आपके सेलुलर मैट्रिक्स को सराउंड करेगी, उसको बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, सेल इन्वेलप। अब सेल इन्वेलप जो है वो कंसिस्ट कर रही है टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर आपकी ग्लाइको कैलिक्स होगी, उसको फॉलो करेगी सेल वॉल अंदर, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope performs distinct function, they act as a single protective unit, और सिंगली वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव यूनिट का हमारे लिए काम करते हैं, ओके। ओके, the bacteria can be classified into two groups on the basis of the difference in the cell envelope, जो उनकी बेसिस डिफरेंस होती है सेल envelope की, उसके हिसाब से हम दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। The manner in which they respond to the staining procedure developed by the ग्राम कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली ग्राम स्टेनिंग एक मेथड डेवलप किया था, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर रहे थे। ग्राम स्टेन्स आर ग्राम पॉजिटिव, जो भी बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले लेंगे दे टेकअप, मतलब कलर्ड हो जाएंगे, दैट आर ग्राम पॉजिटिव। दैट डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, दैट इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ओके। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में बेसिकली वो अलग अलग टाइप की होती है जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम, while in the other thick tough called capsule। देखो ये क्वेश्चन एकदम सेम एग्जैक्टली एक क्वेश्चन बना था कि जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है वो एक लूज शीट है, ये याद रखिएगा, और स्लाइम लेयर इसके साथ कीवर्ड है, ठीक है, यही एग्जैक्टली क्वेश्चन बना था। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया स्लाइम लेयर पे, ठीक है, स्लाइम लेयर वर्ड हट गया था लाइन में, और लूज शीट चारों ऑप्शन में था, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज अ लूज शीट दैट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर।
अगर लूज शीट के फॉर्म में होगा तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर थिक होगा और टफ होगा तो उसको कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, लूज शीट यानी स्लाइम लेयर, अगर आपका टफ है थिक है तो वो कैप्सूल हो जाता है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, जो बेसिकली हमारी सेल वॉल होती है वो डिटरमाइन करती है कि सेल का शेप क्या होगा। प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। बेसिकली ये आपका सेल को प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल वॉल जो होता है, जिसकी वजह से बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग बच जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमिएबल, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, नेचर इंटरेक्ट्स विद द आउटर साइड ऑफ द वर्ड। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द यूकैरियोट एज सिमिलर एज दैट, यूकैरियोट की सेम होती है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम। अच्छा, मीजोजोम यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोट का, which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell. Extension these extension are in the form of the vesicles, tubules and lamina. और जो एक्सटेंशन होते हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के या फिर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो एक्सटेंशन वेसाइकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, टिब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर लेमिला के फॉर्म में हो सकते हैं। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन में बेसिकली मदद करते हैं जो हमारे बेसिकली मीजोजोम्स होते हैं। मीजोजोम्स हमारा इसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हेल्प होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल, तीनों इन तीन काम में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट हो रहा है आपका मीजोजोम से, सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। ठीक, they help in the respiration and the secretion process, respiration secretion process, to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content बढ़ा देते हैं बेसिकली। इन सम प्रोकैरियोट, जैसे कुछ प्रोकैरियोट होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं वहाँ पे इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। अच्छा, इस पे बेसिकली यार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, साइनोबैक्टीरिया में ऐसे कौन से पिगमेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं। ठीक है, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर दैट कंटेन। अब ये जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, ये कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट होस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉपिक हो पाते हैं साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब जैसे मतलब क्लोरोफिल तो होगा नहीं इनमें, प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनमें क्रोमैटोफोर्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। Bacterial cell may be motile or non-motile. They might be motile, they might be non-motile. The motile, they have thin filamentous extension of their cell wall called flagella. ठीक है, एक पतला सा अगर आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सटेंशन हो जाता है सेल वॉल का तो उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। बैक्टीरिया शोज द रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। बैक्टीरिया जो है बेसिकली रेंज शो करता है नंबर्स में एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। दैट इज़ नॉट इन आवर एनसीईआरटी, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। कई अलग अलग बैक्टीरिया के नाम थे, ठीक है, वो सब मतलब का नहीं है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज ऑफ द 3 पार्ट्स। बेसिकली बैक्टीरियल फ्लैजेलम जो होता है हमारा 3 पार्ट का होता है। फिलामेंट होता है फ्लैजेला में, हुक होता है और एक बेसल बॉडी होती है। फिलामेंट आपका आउटर मोस्ट पोर्शन जो सबसे लंबा होगा, हुक होगा, देन बेसल बॉडी होगी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, एक्सटेंड्स टू द सेल सरफेस आउटसाइड। द फ्लैजेला, जो फ्लैजेला हो गया, बिसाइड्स फ्लैजेला, पिलाए फिम्बरी आर ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिलिटी। जो पिलाए हो गया या फिर आपके फिम्बरी हो गया वो मोटिलिटी में वर्क नहीं करते हैं, लेकिन जो पिलाए होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑफ द स्पेशल प्रोटीन, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल प्रोटीन के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हो गए, उनको हम बोलते हैं पिलाए। ठीक है, फिम्बरे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। फिम्बरे क्या होते हैं, फिम्बरे बेसिकली कुछ ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि स्प्राउट आउट करते हैं सेल के। ठीक है, सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया इन द रॉक। कुछ बैक्टीरिया होते हैं दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। ठीक है, अब है हमारा राइबोसोम एंड द इंक्लूजन बॉडी।
तो बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमारे एक होते हैं 70s टाइप ऑफ द राइबोसोम, देन हमारे होते हैं 80s टाइप ऑफ द राइबोसोम. सो प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of the cell. They are about 15 nanometer to 20 nanometer in the size, are made up of the two subunit जो बेसिकली हमारे प्रोकैरियोट के राइबोसोम है. ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन बनता है इससे. ठीक है, दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर के होते हैं साइज के, मेड ऑफ द टू सब यूनिट. दो सब यूनिट होती हैं 50 प्लस 30 दैट फॉर्म्स 70. कभी ऐसी ऐसा पढ़े नहीं पढ़े ना आप? 80 बोलेंगे नहीं, ये बायो है भाई, यहाँ पे 70 होता है. तो 10 का क्या हुआ, 10 का आप पूछेंगे क्या हो गया. और ये S क्या है? S बेसिकली सेडवर्ज यूनिट होती है. ठीक है, सेडवर्ज एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन राइबोसोम को देखा था, उन्होंने 30 और 50 को कंबाइन कर दिया, तो उन्होंने देखा कि भाई 80 नहीं 70 कैलकुलेशन में आता है. तो भाई 10 का क्या हो रहा है, वो बेसिकली आपका कहने वाले बोलते हैं सेडिमेंट कर गया. ठीक है, सेडिमेंटेशन यूनिट होती है ये वो. तो ये आप ये मान लीजिए 10% बर्बाद हो, 10 बर्बाद हो गया, बाकी आपका 70 बचा 80 में से. ठीक, राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन. जैसे एनर्जी बर्बाद होती है ना किसी भी काम में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या फिर अलग अलग, तो उसी टाइप से राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. जो राइबोसोम होते हैं हमारे, वो प्रोटीन सिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस. ठीक है, ये आप 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में. वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस को ही कहते हैं. सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए, कईयों सेवरल राइबोसोम होते हैं. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एमआरएनए से अटैच कर जाते हैं, फॉर्म द चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम. और द पॉलीसोम एक 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 एमआरएनए से अटैच करने के बाद, ठीक है, राइबोसोम कईयों राइबोसोम एक एमआरएनए से अटैच करने के बाद पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम जिसे हम कह सकते हैं, वो बना देते हैं. ओके, राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट. जो बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए इनटू प्रोटीन, जो एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक, इंक्लूजन बॉडी रिवर्स मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड. जो कुछ रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, उनको स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी. दे आर नॉट बाउंड बाय द सेल मेम्ब्रेन. किसी भी मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड नहीं होते हैं, एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में एकदम फ्रीली लाई करते हैं. ये इंक्लूजन बॉडी होती हैं. रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोट्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी. दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन. कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इंक्लूजन बॉडी पे क्वेश्चन बनता है बॉस. कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, लाई कर रहा है फ्री इन द साइटोप्लाज्म. that is example phosphate granules, cyanophane granule, glycogen granules. Gas vacuoles are found in the blue green algae, purple and the green photosynthetic bacteria. ये सब गैस वैक्यूल होस्ट करते हैं. ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी. ठीक है, कोई भी आपका मेम्ब्रेन नहीं है उसके अराउंड. ठीक है, बेसिकली फ्रीली वो लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में, कोई रोक टोक नहीं. ठीक है, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया, गैस वैक्यूल हो गया, जो कि सच में ब्लू ग्रीन एल्गा है, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखा भी गया है. अब यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट एनिमल जितने हैं, मतलब मोनेरा को छोड़ के सब यूकैरियोट है. यूकैरियोट्स आर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द बेसिकली कंपार्टमेंट होते हैं उसमें, मतलब अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिलेंगे. यूकैरियोटिक सेल पजेस करते हैं ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप होगा. ठीक है, मतलब हर चीज़ होगी उसमें. यूकैरियोटिक सेल्स हैव द वेराइटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर दैट their genetic material is organized into chromosome. जो बेसिकली उनका जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है. ऑल द जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स आप देखेंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल. कोई भी आइडेंटिकल नहीं होता है. ठीक है, द प्लांट
and the animal cells are different as former possess the cell wall plastids and अब देखो यहाँ पे जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं वो आइडेंटिकल नहीं, मतलब एक जैसे नहीं होते, अलग अलग हो सकते हैं, उनमें अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में, जो प्लांट और एनिमल सेल होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इन द नेम ऑफ सेल वॉल नहीं होती है एनिमल में, प्लांट में होती है। प्लास्टिड प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। विच आर एब्सेंट इन द एनिमल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स के पास सेंट्रियोल है लेकिन प्लांट में नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्लांट सेल और ये हमारा एनिमल सेल, इन दोनों के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, detailed structure of the cell membrane was studied only after the advent of the electron microscope। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर ली थी 1950 के बाद, तब हम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर पाए थे। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन आरबीसीज enabled the scientists to deduce the possible structure of the cell membrane। जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा, स्पेशली इन द आरबीसीज, जो हमारे आरबीसीज थे उसमें जब देखा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम डिड्यूस करने लगे। द स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन द बाइलेयर। बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स इनमें होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन द बाइलेयर। बेसिकली वो जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। The lipids are arranged within the membrane with their polar head towards the outer side। polar head आपके बाहर साइड को होते हैं और lipids basically membrane में attached होते हैं, ठीक है। polar head outer side and the hydrophobic tail towards the inner side, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल जो होती हैं वो अंदर साइड को होती हैं, at the inner part। This ensures the non-polar tail saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। Lipid component of the membrane mainly consist of the phosphoglycerides। लिपिड कंपोनेंट जो मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के हमारे, दैट आर कंपोज्ड ऑफ बेसिकली फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। दिस इंश्योर नॉन पोलर टेल जो होती है आपकी, बेसिकली क्या है, जो फॉस्फोलिपिड है हमारा, जो लिपिड्स हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं बाइलेयर में, ठीक है। जैसा कि आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिपिड जो है बेसिकली बाइलेयर में यहाँ पे अरेंज हैं ये, ठीक है। तो वही हमारा एनसीईआरटी कह रही है, ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। जो इनकी पोलर हेड है, ये आप देख सकते हैं, जो बाहर ये ब्लू ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये पोलर हेड है जो कि आउटर साइड पे है। और जो हाइड्रोफोबिक हेड है जो कि नॉन पोलर है, ठीक है, इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, मतलब बाहर नहीं है, बेसिकली सैचुरेटेड टेल है वो अंदर साइड को है, ठीक है। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड्स। और जो लिपिड कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे वो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड होगी और ये फॉस्फेट होगा, इसलिए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, लिपिड है ये हमारा, ठीक है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, दैट क्लियरली रिवील्ड द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। तब हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल्स। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52%। अगर हम एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की बात करें तो उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ द एक्सट्रैक्शन, जो हमारा ईजिली एक्सट्रैक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो या तो पार्शली या फिर टोटली बरीड है। जो पेरिफेरल प्रोटीन है, जैसे आप बाहर देख सकते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो बेसिकली आपका पार्शली घुसा हुआ है इस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। टोटली बरीड, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। दिस इज अ फ्लूइड एंड कोलेस्ट्रॉल भी होता है यहाँ पे। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिमेंबर दिस नेम, दिस वाज अ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द
plasma membrane. An improved model of the structural cell membrane was proposed by the Singer and Nicholson. 1972 widely accepted fluid mosaic model. 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. According to this, quasi-fluid nature of the lipid enable the lateral movement of the protein within the overall bilayer. ठीक है, इस बेसिकली जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसके हिसाब से कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स, जो कॉजी फ्लूइड नेचर है लिपिड का मतलब बेसिकली एक साइड आपका पोलर हेड है दूसरा नॉन पोलर हेड है, ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक है एक हाइड्रोफिलिक हो गई, इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर. ठीक है, जिसकी वजह से लेटरल मूवमेंट हो पाता है प्रोटीन का. दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी. और ये जो एबिलिटी है आपकी प्रोटीन के मूवमेंट की, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी. ठीक है, fluid nature of the membrane is also important from the point of the function of the cell growth function, intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division, etc. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it. Molecule का एक membrane से transport होना ये एक important function है plasma membrane का. The membrane is selectively permeable. जो membrane है वो selectively permeable होती है कुछ particular molecules के लिए present on the either side of it, जो किसी भी side पे present हो सकता है. Many molecules can move briefly across the membrane. कईयों molecule basically membrane के cross move करते हैं without any requirement of the energy. इस तरह के transport को हम passive transport कहते हैं. Neutral solutes may move across the membrane by the process of the simple diffusion. जो हमारी neutral solute है, ठीक है, वो बेसिकली सिंपल डिफ्यूज़न कर सकते हैं अलोंग. देखिए यहाँ पे कुछ बताने लायक खास है नहीं. पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो नहीं रही है, ठीक है. न्यूट्रल सॉल्यूट होगी, ठीक है, मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, वही तो आपका डिफ्यूजन के बारे में यहाँ पे बता दिया. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन to higher to lower concentration. Movement of the water by diffusion is called as osmosis. Semi permeable membrane के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है आपका, तो उसे हम ऑस्मोसिस नाम दे देते हैं. वाटर का मूवमेंट होता है अगर, ठीक है. द एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर. देखो अब बीच में आपकी पूरी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, पोलर हेड आपके सामने है, ठीक है, वहाँ पे पोलर आपका अंदर नहीं जा पाएगा बिकॉज नॉन पोलर लिपिड की बाई लेयर है, ठीक है, नॉन पोलर है वो रिपेल कर जाएगी. दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन. जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनको रिक्वायरमेंट होगी कैरियर प्रोटीन की ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पोजेस करेंगे, ठीक है. अ फ्यू आयंस और द मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कुछ मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए, उनको बेसिकली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हमें चढ़ाना होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. सच ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट in which the ATP is utilized and this is termed as active transport. ये सोडियम पोटेशियम पंप में देखोगे जहाँ पे आपकी ATP का यूटिलाइजेशन होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस और द एनायंस. ओके, cell wall. As you may recall, a non-living rigid structure called cell wall, बेसिकली एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको आप सेल वॉल का नाम दे देते हो. सेल वॉल फॉर्म करता है आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है, फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड प्लांट. फंजाई और प्लांट दोनों में. हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अभी पूरा एज कंप्लीट बात कर रहे हैं. जब हम प्रोकैरियोटिक में बात कर रहे हैं भाई सेल वॉल थी वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेल वॉल है, ठीक है. यहाँ पे कहाँ पे है, फंजाई में है, प्लांट सेल में, दो में पाई जाएगी आपकी. प्रोटिस्ट में नहीं मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, एनिमेलिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है. सेल वॉल not only gives shapes to the cell, protects the cell from the mechanical damage and the infection, it also helps the cell to cell interaction, provides the barrier to the undesirable macromolecule. एल्गाए हैव द सेल वॉल. जो बेसिकली हमारे एल्गाए हैं दैट इज़ प्लांट में ही आ जाते हैं, उनमें सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैमल्स एंड द मिनरल लाइक द कैल्शियम कार्बोनेट
while other plant consist of the cellulose, hemicellulose। अच्छा, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बेसिकली बनता है और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यार प्लांट किंगडम में ये पढ़ा हुआ है, प्लांट किंगडम में दिया है, ठीक है, वहाँ पे ये देखो ये नाम नहीं दिए हैं, गैलेक्टेंस, मैमल, मैनन्स, मिनरल्स लाइक द कैल्शियम कार्बोनेट। सेल वॉल में है कंपोनेंट एल्गाई के, डेफिनेटली हैं, लेकिन प्लांट किंगडम में ये टॉपिक नहीं दिया है, और क्वेश्चन यहाँ से उठा के अगर बना दिया तो कंफ्यूज होंगे। आपने प्लांट किंगडम तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, वी लीव इट। सो ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर को। Algae have the cell wall made up of the cellulose, galactans and mannans। Minerals like calcium carbonate होते हैं algae की cell wall में, while other plant it consist of the, जो बाकी plants में होता है cell wall, उसमें cellulose, hemicellulose, pectins और proteins से बना होगा। ओके, देन द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल्स, जो यंग प्लांट सेल्स होती हैं उनमें प्राइमरी वॉल होती है, इस केपेबल ऑफ द ग्रोथ, जो कि ग्रोथ के लिए केपेबल है, ठीक है। जो प्राइमरी होती है वो प्राइमरी वॉल होती है, ग्रेजुअली डिमिनिशेस एंड द सेल मैच्योर, सेकेंडरी वॉल आ जाती है, इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड पे आपकी सेकेंडरी वॉल बनेगी साइड ऑफ द सेल। द मिडिल लैमेला इज मेनली, मिडिल लैमेला इज़ अ लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट, एक मिडिल लेमिला होता है, ठीक है। मिडिल लेमिला दो सेल्स को बेसिकली एक दूसरे में जॉइंट रखता है, देखिए दैट इज होल्ड देम टुगेदर, वर्क्स एज अ ग्लू, ठीक है। मिडिल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, किसका, कैल्शियम पेक्टेट का बना होगा मिडिल लेमिला। द सेल वॉल एंड द मिडिल लेमिला मे बी ट्रावर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, बेसिकली जो सेल वॉल होती है एंड आपका जो मिडिल लेमिना है वो बीच में एक दूसरे से कटा हो सकता है बाय द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, जो कि साइटोप्लाज्म को अगर कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होगा तो वहाँ पे बेसिकली आपका ये कटा हुआ होगा, ठीक है। मतलब इनकी कंटिन्यूटी छूट जाती है जो मिडिल लेमिना और सेल वॉल की है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, while each of the membranous organelle is distinct in the term of the structure and the function, many of these are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated। कईयों बेसिकली मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोलते हैं, उनके फंक्शंस बेसिकली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, lysosome, vacuoles, since the function of the mitochondria, chloroplast and the peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of the endocrine system। ठीक है, जो हमारे बेसिकली एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, ठीक है, वो इंक्लूड करता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में ईआर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम है और वैक्यूल है। ये तीन चीज़ें हैं, क्या क्या है, टोटल हो गई चार ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम है, वैक्यूल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल, इनके जो फंक्शन होते हैं, since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above component, they are not considered as a part of the, वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं है। केवल चार हैं आपके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स एंड द वैक्यूल्स, ये बेसिकली कोऑर्डिनेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर 4 न्यूक्लियस दे रखा है, राइबोसोम दे रखे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप studies of the eukaryotic cell reveal the presence of the network of the reticulum of the tiny tubular structure scattered in the cytoplasm, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल में कि आपका प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क और द रेटिकुलम ऑफ द टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, कुछ बेसिकली ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें मिले, ठीक है, जो कि स्कैटर्ड थे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे दिया गया। ER डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली पूरे कंपार्टमेंट में फैला होता है, तो ये दो तरह का कंपार्टमेंट बना देता है, ल्यूम्यूनल दैट इज इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूम्यूनल दैट इज साइटोप्लाज्मिक। ल्यूम्यूनल मतलब क्या होता है, ल्यूमिनल बेसिकली हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, तो इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ल्यूमिनल,
ठीक है। एक्स्ट्रा लिम्यूनल इज द साइटोप्लाज्म, मतलब आपका जो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जितना पोर्शन होगा साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, एक्स्ट्रा लिम्यूनल और लिम्यूनल, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। Endoplasmic reticulum often shows the ribosome attached to the outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is rough endoplasmic reticulum. In the absence of the ribosome appear smooth. They are called as smooth endoplasmic reticulum. This is again important. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक आर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन हमारा क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना और सिक्रीशन कराना, दो फंक्शन है हमारे आर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन। दे आर एक्सटेंसिव, बहुत बड़े बड़े होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन। जो भी आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसके साथ कंटिन्यूअस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है इससे देखिए यहाँ से कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो वही चीज़ है। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था, इस पे क्वेश्चन आता है। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, लिपिड की सिंथेसिस यहीं पे होती है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडियल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द, जो स्टेरॉइडियल हार्मोन्स हैं या फिर लिपिड की सिंथेसिस, मतलब लिपिड से बनने वाले कंपोनेंट और लिपिड यहीं बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलवेज रिमेंबर दैट, वहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, मतलब प्रोटीन का काम नहीं होगा या फिर सिक्रीशन नहीं होगा, लिपिड का काम होगा। लिपिड का कार्य आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराएगा। अब कैमिलो गोल्गाई, एक साइंटिस्ट हमारा है कैमिलो गोल्गाई, इन्होंने भाई क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। इन्होंने डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर एक निकाल लिया जो कि हमारा गोल्गाई कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गाई अपार्टस है। दे वर नेम्ड एज गोल्गाई बॉडीज, उनको गोल्गाई बॉडीज नाम दे दिया हमने। दे कंसिस्टेड ऑफ द मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और द सिस्टर्ने ऑफ द, बेसिकली उसमें बेसिकली आपके डिस्क शेप थे या फिर सिस्टर्ने थे वहाँ पे। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये बेसिकली पैरेलली एक दूसरे से स्टैक्ड थे। ठीक है, दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। वेराइड नंबर ऑफ द सिस्टर्ने आर प्रेजेंट, कईयों बेसिकली सिस्टर्ने आपके प्रेजेंट होते हैं इन द गोल्गाई कॉम्प्लेक्स। द गोल्गाई सिस्टर्ने, जो बेसिकली गोल्गाई के सिस्टर्ने होते हैं, दे आर concentrically arranged near the nucleus and distinct concave cis or forming face और the concave trans और maturing face, बेसिकली उनका जो concave trans या फिर maturing face जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ये सिस्टर्ने हैं, ये हैं हमारे सिस्टर्ने, जो गोल्गाई अपार्टस है, ये इनकी जो फोल्डिंग्स हैं इन इंटरनल फोल्डिंग, ये हमारे सिस्टर्ने हैं। और ये हमारा जैसे आप देख सकते हैं ये कॉनकेव बोल सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिया मेरा। कंसेंट्रिकली देखो, कंसेंट्रिक मतलब यहाँ पे हर टाइप का एक एक सर्कल टाइप का बन रहा है ना, और इनका एक ही सिमिलर पॉइंट है इसीलिए वो कंसेंट्रिक है। ठीक है, आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एकदम पास होते हैं। डिस्टिंक्ट कॉनकेव सिस, कॉन्वेक्स सिस होगा और फॉर्मिंग फेस होगा, या फिर फॉर्मिंग फेस कह दो मतलब जो न्यूक्लियस को फेस कर रहा हो ऐसा। ठीक है, मून शेप। ठीक है, कॉनकेव ट्रांस, जिसको कॉनकेव ट्रांस बोल सकते हो, और द मैच्योरिंग फेस बेसिकली वो न्यूक्लियस की साइड होता है। ओके, देन सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। हालांकि वो पूरे डिफरेंट होते हैं सिस और ट्रांस जो फेसेस होते हैं इनके, बट they are interconnected. Everything is interconnected in the Golgi apparatus. Golgi apparatus principally performs the function of the packaging material to be delivered either to the intracellular targets or the secreted outside. Material to be packed, basically packing का काम करते हैं। Material to be packed in the form of the vesicles from the endoplasmic fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मटेरियल आपका गोल्गाई अपार्टस पैक करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वेसाइकल। वेसाइकल आप एक पाउच समझ लीजिए, पाउच के फॉर्म में पैक कर रहा है।
फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस। जो सिस फेस होता है, देखो आपका एक सिस फेस है और ट्रांस फेस है, आपका जो भी गोल्गी अपार्टस होगा। जो सिस फेस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है ऑफ द गोल्गी अपार्टस एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। और वेसाइकल्स बेसिकली क्या करते हैं, वो आपके सिस फेस से आपके ट्रांस फेस की तरफ मूव करने लगते हैं, मैच्योरिंग फेस उसे बोलते हैं, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्गी अपार्टस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द, और यही रीज़न होता है कि गोल्गी अपार्टस बेसिकली पैकेजिंग का काम करता है, इसीलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत बगल में एकदम चिपका हुआ होता है। द नंबर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द, जो भी राइबोसोम आपके बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी अपार्टस मॉडिफाई करता है, ठीक है, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स सिस ट्रांस फेस, ठीक है। बेसिकली सिस्टर्निया गोल्गी अपार्टस के उनको मॉडिफाई करता है और ट्रांस फेस से उनको रिलीज किया जाता है। गोल्गी अपार्टस इज इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे गोल्गी अपार्टस पे आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का भी फॉर्मेशन होता है। लाइजोसोम्स, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइजोसोम्स हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी अपार्टस। गोल्गी अपार्टस की पैकेजिंग की वजह से ही बनते हैं ये लाइजोसोम। आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड वेरी रिच इन द ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें हर तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्टिमली एक्टिव एसिडिक पीएच, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एट द एसिडिक पीएच। एंजाइम्स आर केपेबल डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड, और इन्हीं को इसीलिए लाइसोसोम्स को हम बेसिकली सुसाइड वैक्स भी कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स माइट बी कॉन्ट्रैक्टाइल। Now, vacuoles in the membrane bound space found in the cytoplasm. cytoplasm के अंदर आपको vacuoles मिलेंगे। ये basically membrane bound again होते हैं। It contains cell sap, excretory product, other material not useful for the cell. The vacuole is basically जो भी चीज़ें useful नहीं है वो भी ये कंटेन करते हैं। वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन द प्लांट सेल, जो बेसिकली प्लांट सेल्स होते हैं, वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो प्लांट सेल टोनोप्लास्ट होती है वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस एंड द अदर मिनरल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स में बेसिकली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका मॉलिक्यूल्स का एंट्री होता है, ठीक है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इसीलिए जो बेसिकली आयंस का जो कंटेंट होता है वो आपका वैक्यूल्स में ज़्यादा होता है प्लांट सेल में इन कंपैरिजन टू द साइटोप्लाज्म। जो अमीबा होता है उसका एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीशन आराम से कर पाता है। इन मेनी सेल्स एज इन द प्रोटेस्ट फूड वैक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड आर फॉर्म्ड बाय द एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने की वजह से बेसिकली फूड वैक्यूल बनते हैं। प्रोटिस्ट में ये होता है, ठीक है। नाउ मिटोकॉन्ड्रिया is unless specifically stained are not easily visible under the microscope. They are not easily visible. The number of the mitochondria per cell is variable depending upon the physiological activity of the cell. ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है सेल की। मिटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे ये इसी पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। In terms of the size, says considerable degree of the variability is observed. Typically, it is sausage shaped or the cylindrical, having the diameter this much, 0.2 to 1.0 micrometer, average 0.5 micrometer, length आपकी approximately 1 to 4.1 micrometer. ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी और जो इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो ये आप यहाँ पे कटी हुई देख रहे हैं, और इनर मेम्ब्रेन ये आपकी रही, ठीक है। अंदर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्रिस्टा है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस है इनके बीच में, ठीक है।
and matrix and the, ठीक है. Membrane dividing its lumen in distinctly into two aqueous compartment. The two compartment in inner compartment and the outer compartment. जो membrane होती हैं basically lumen को दो part में divide कर देती हैं, that is it inner compartment and outer compartment. The inner compartment is called matrix. अंदर वाला जो compartment है वो matrix है. Outer forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms number of the enfolding called क्रिस्टाई. अच्छा, वहाँ पे सिस्टरने वर्ड था, यहाँ पे क्रिस्टाई था. डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है. टूवर्ड्स द मैट्रिक्स क्रिस्टे है, ठीक है. अंदर क्रिस्टे बनते हैं, यहाँ पे सिस्टरने नहीं बनते, क्रिस्टे बनते हैं, ठीक है. जो क्रिस्टे होते हैं वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, ठीक है. टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की. दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी. एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. हेंस आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स. मैट्रिक्स पोजेसेस सिंगल सर्कुलर. जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, उनमें डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है. एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी कंपोनेंट रिक्वायर होगा वो. अच्छा, यहाँ पे एक खास बात है कि हालांकि ये यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन इनमें जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो 70S टाइप है, ठीक है. इनके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए होता है, कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन वो भी होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिजन. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे डिवाइड कैसे करेगा, वो फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, ओके, ड्यूरिंग सेल साइकिल. नाउ वी हैव अबाउट द प्लास्टिड्स. Plastids we have plastids are found mainly in the plant cell and in the euglenoids. Euglenoids और plant cell में आपको plastid मिल जाएंगे, ठीक है. प्लांट्स यूग्लिनॉइड हमारा प्रोटिस्ट का एक पोर्शन है, ठीक है. दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में आसानी से आप देख सकते हैं. दे आर लार्ज वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दैट इम्पार्ट ए स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट एंड द प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. हम तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं इनको प्लास्टिड्स को. दे माइट बी क्लोरोप्लास्ट, दे माइट बी क्लोरोप्लास्ट, दे माइट बी ल्यूकोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होगी आपकी, ठीक है. कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. जो कि बेसिकली कुछ पर्टिकुलर कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रैप कर सकता है लाइट एनर्जी को, और वो एसेंशियल होता है आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है. जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक द कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होंगे. देखो, क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल मिलेगा, ठीक है. बाकी कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. और जो अब हम बात कर रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट. वो फ्लैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक द कैरोटीन, ज़ैंथोफिल अदर आर प्रेजेंट, gives the part of the plant a yellow, red or the orange. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस. जो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, वेरी शेप एंड द साइज विद द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स द कार्बोहाइड्रेट. पोटैटो इलाइलियोप्लास्ट स्टोर्स द ऑयल फैट्स एंड whereas eleuroplast stores the protein. This is again important, okay.
माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिजन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे डिवाइड कैसे करेगा, वो फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। ओके, during cell cycle. Now we have about the plastids. Plastids we have plastids are found mainly in the plant cell and in the euglenoids. Euglenoids और plant cell में आपको plastid मिल जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स यूग्लिनॉइड हमारा प्रोटिस्ट का एक पोर्शन है, ठीक है। दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आसानी से आप देख सकते हैं। दे आर लार्ज वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दैट इम्पार्ट ए स्पेसिफिक कलर to the plants based on the type of the pigment, and the plastids can be classified as a chloroplast, chromoplast and leucoplast. हम तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं इनको प्लास्टिड्स को। दे माइट बी क्लोरोप्लास्ट, दे माइट बी क्लोरोप्लास्ट, दे माइट बी ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होगी आपकी, ठीक है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि बेसिकली कुछ पर्टिकुलर कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रैप कर सकता है लाइट एनर्जी को, और वो एसेंशियल होता है आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक द कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होंगे। देखो क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल मिलेगा, ठीक है। बाकी कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और जो अब हम बात कर रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। वो फ्लैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक द कैरोटीन, xanthophyll other are present, gives the best gives the part of the plant a yellow, red or the orange. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। जो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, वेरी शेप एंड द साइज विद द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स द कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो इलाइलियोप्लास्ट स्टोर्स द ऑयल फैट्स एंड whereas eleuroplast stores the protein. This is again important, okay. अब हम बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि फर्दर ये जो हमारे क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड रिस्पॉन्सिबल, ये पिगमेंट्स हमारे बेसिकली मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं उनमें कलरलेस प्लास्टिड मिलेंगे एंड शेप एंड द साइज स्टोर्स न्यूट्रिएंट स्टोर करने का ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट में आपके एमाइलोप्लास्ट आ जाता है, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करेगा, इलायोप्लास्ट आपका ऑयल फैट्स स्टोर करेगा, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करेगा। इस पे क्वेश्चन बनता है बेसिकली, याद रखिएगा। अब ये हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, ओके। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर देखें तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है अगेन, फिर ग्रैनम है, उसमें थाइलाकॉइड है, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेले, जो बीच में ये कनेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं इनको स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं, और ये हमारा स्ट्रोमा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल। जितने भी मेजॉरिटी हैं वो ग्रीन प्लांट या फिर मेसोफिल्स में मिलेंगे आपको। The cells of the leaves, these lens are lens shaped oval spherical। जो लेंस इनके जो सेल्स हैं, these are oval spherical discoid, मतलब कि इन सब फॉर्म्स के हो सकते हैं। वेरी वेरिएबल इन द लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर, ये हमारी विड्थ हो सकती है। देयर नंबर वेरी फ्रॉम 1 per cell ऑफ द कैलमाइडोमिनास। एक ही हो सकता है कैलमाइडोमिनास में, जैसे ग्रीन एल्गाए में, ग्रीन एल्गाए 20 to 40 भी हो सकते हैं, ठीक है।
पर सेल इन द मीजोफिल सेल। अगर हम देखें एक ही क्लोरोप्लास्ट शायद मिलता है क्लामाइडोमोनास में, और ग्रीन एल्गा जैसे ग्रीन एल्गा टू पर सेल, ठीक है, ग्रीन एल्गल में आपका एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है, क्लामाइडोमोनास में। मीजोफिल को अगर देखें, मीजोफिल सेल्स जो प्लांट के होते हैं उनमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं एक ही सेल में, ठीक है। Like mitochondria, chloroplast are double membrane bound structure of the two. The inner chloroplast membrane is relatively less permeable. जो inner membrane होती है वो less permeable होती है as compared to outer membrane. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. जो space basically limit हो रहा है inner membrane का, जो अंदर का पूरा पोर्शन है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। द नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक ग्रेनम में थाइलाकॉइड होते हैं, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड्स आर इन द स्टैक ऑफ द पाइल्स, जिनको हम ग्रेना बोलते हैं या फिर ग्रेनम बोल लो। और इंटीग्रेनल थाइलाकॉइड, इंटीग्रेनल थाइलाकॉइड भी कह सकते हैं, इसी का नाम है इंटीग्रेनल थैलाकॉइड, मतलब पूरा बंच ऑफ द जो होगा पाइल होगा कॉइन्स का, उसको बोलते हैं बेसिकली इंटीग्रल ग्रैनल थैलाकॉइड या फिर ग्रैना बोल लो। एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल, कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले, जो कि कनेक्ट करते हैं थैलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रैना, ठीक है, जो कनेक्शन बेसिकली बढ़ाते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, एंड क्लोज अ स्पेस जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, जो अंदर का पोर्शन होता है थैलाकॉइड के उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो स्ट्रोमा है आपका क्लोरोप्लास्ट का, उसमें कई एंजाइम होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड द प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस आपकी साइटो वहाँ पे जो आपका स्ट्रोमा है वहाँ पे होती है। It also contains a small double-stranded circular DNA molecule and the ribosome. Chlorophyll pigments are present in the Chlorophyll pigments are present in the thylakoid ribosome of the chloroplast are smaller 70s and the cytoplasm 80s, ठीक है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन साइटोप्लाज्म राइबोसोम, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आपके 80s होते हैं और 70s यहाँ पे भी होते हैं, जैसे मिटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, के नीचे हमने राइबोसोम को देखा था। डेंस पार्टिकल बाय द गीगर प्लाइडे 1953 में इन्होंने देखा था। They are composed of the ribonucleic acid. Ribonucleic acid and the protein are not surrounded by any membrane. वो किसी भी membrane से surrounded नहीं होते हैं, ठीक है। This is important. गीगर प्लाडे 1953 में इन्होंने राइबोसोम्स की डिस्कवरी करी थी। The eukaryotic राइबोसोम, जो बेसिकली यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80s टाइप के होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 70s टाइप के, और S को हम बोलते हैं सेडवर्ज यूनिट, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से भी रेफर करते हैं, ओके। एंड इट इज़ इनडायरेक्टली मेजर ऑफ द, और ये बेसिकली क्या होता है, जो सेडवर्ज यूनिट होती है ये डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। बोथ द 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ द टू सब यूनिट, दो सब यूनिट होती हैं। 70 में हमारा 50 और 30 होता है, एंड 80 में हमारा अराउंड 60 एंड 40 होता है, समथिंग लाइक दैट। I will tell you. The cytoskeleton elaborate network of the filament proteinous structure called present in the cytoplasm collectively referred as a cytoskeleton, जो बेसिकली फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर आप पूरी साइटोप्लाज्म में देखते हो उसको हम साइटोस्केलेटन, जैसे आपको पिलर चाहिए होते हैं वैसे ही आपको कुछ प्रोटीन के फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल आर इन्वॉल्व इन द मैनी फंक्शन सच एज द मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप मेंटेन करना, ये सब बेसिकली फंक्शन में साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होता है। देन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है यहाँ पे। ये हमारी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसी
Section of the cilia flagella showing different plant electron micrograph diagrammatic representation internal structure. तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया था और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है। देन हमारा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जिन्हें डबलेट्स बोलते हैं ये हमारे होते हैं। इंटीग्रल डबलेट्स होते हैं, इंटर डबलेट्स ब्रिज होते हैं। ये इस पे बेसिकली यहाँ पे इस डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज रट लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आता है। सेंट्रल शीथ है ये आपकी, देन रेडियल स्पोक है। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो cilia and flagella. Cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are the small structures which work like oars. ना ये सब बेसिकली फंक्शन में साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होता है। देन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है यहाँ पे। ये हमारी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसी सेक्शन ऑफ द सीलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट प्लांट इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया था और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है। देन हमारा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जिन्हें डबलेट्स बोलते हैं ये हमारे होते हैं। इंटीग्रल डबलेट्स होते हैं, इंटर डबलेट्स ब्रिज होते हैं। ये इस पे बेसिकली यहाँ पे इस डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज रट लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आता है। सेंट्रल शीथ है ये आपकी, देन रेडियल स्पोक है। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो cilia and flagella. Cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are the small structures which work like oars. We have to study about the cilia and the flagella. Cilia and flagella are the hairs outgrowth of the cell membrane. Cell membrane की basically ये hair outgrowth किसकी होती है? Cell membrane की होती है. Don't be confused about the cell membrane or the cell wall, that might be question made. The cells cilia are small structure. Cilia basically कुछ small structure होते हैं which work like the oars, जो कि oars का काम करते हैं, causing movement of either of the cell or the surrounding fluid, जिसकी वजह से सेल या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट होगा। Flagella are comparatively longer, responsible for the movement of the cell, and the prokaryotic bacteria are also flagella, but these are structural। जो basically prokaryotic बैक्टीरिया होते हैं वो भी बेसिकली फ्लैजिला पोजेस करते हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होगा और जो हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम एंड द फ्लैजिला शो दैट दे आर कवर्ड with the plasma membrane. The core, called exonyma, possesses number of the microtubules running parallel to the long axis। ठीक है, कईयों आपके बेसिकली एक्सोनिमा होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनोमा यूजुअली हैज़ 9 पेयर्स, 9 पेयर्स डबलेट्स होते हैं एक्सोनिमा में। ठीक है, जो कि रेडियली अरेंज होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और पेयर ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड माइक्रो, कुछ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ठीक, सच अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड टू एज 9+2 एरे। और इस तरह के अरेंजमेंट को, जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं 9+2 एरे। ठीक है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्रिज, कुछ ब्रिजेस से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एंड इज इनक्लोज बाय द सेंट्रल शीथ, और सेंट्रल शीथ उसको इनक्लोज करती है। विच आर कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं। सी नाउ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी जब हमने देखा, द कोर इज कॉल्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर और अंदर का जितना पोर्शन होता है जो कोर है ये पूरी, इसको हम एक्सोनिमा बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दे रखा है देयर कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनिमा possesses a number of the micro, इसमें नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि रन करते हैं पैरेलल along द लॉन्ग एक्सिस।
एक्सोनेमा हैज़ 9 पेयर ऑफ द डबलेट, यहाँ पे 9 पेयर ऑफ द डबलेट्स है। डबलेट्स हमारे ये हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 पेयर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 है और 9 की डबलेट्स है, मतलब पेयर है, इसीलिए उसे डबलेट बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule, वहाँ पे एक पेयर होता है centrally located microtubule, इसीलिए ये centrally located है, और ये radially arranged microtubules है, ठीक है। फिर है हमारा central tubules are connected by the bridges and is enclosed by the central sheath। जो central tube है वो basically bridges से एक दूसरे से connected है और enclosed होता है, एक सेंट्रल शीथ होती है, ठीक, सेंट्रल ब्रिज होता है और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में एक सेंट्रल शीथ होती है, ठीक है ना। एंड इज कनेक्टेड बाय द विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच, और ये जो सेंट्रल शीथ होती है ये हर ट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड हो रहता है। ये आप रेडियल स्पोक देख सकते हैं, ये रेडियल स्पोक है आपके, ठीक है। ये रेडियल स्पोक बेसिकली सेंट्रल शीथ से इन 9 पेयर्स ऑफ द ट्यूब्यूल, 9 + 2 इसीलिए बन जाता है, 2 अंदर एंड 9 पेयर बाहर, ठीक है। देयर आर 9 रेडियल स्पोक, 9 रेडियल स्पोक्स हैं, ठीक है। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं, डबलेट्स एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं थ्रू द लिंकर्स। both the cilium and the flagellum emerge from the centriole like structure called basal body, ठीक है। और जो सीलियम और फ्लैजेलम है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से ही निकलते हैं, जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, जो इंटर डबलेट्स होते हैं, डबलेट ब्रिज, ठीक है, ये बेसिकली लिंकर्स का काम करते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटर डबलेट ब्रिज को ही इन्होंने लिंकर्स का नाम दे दिया, ओके। नाउ सेंट्रोजोम एंड द सेंट्रियोल, अगर हम देखें सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल बेसिकली क्या है। सेंट्रोजोम इज अ ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, सराउंडेड बाय द एमॉर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल, एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, बेसिकली कुछ एमॉर्फस मटेरियल होता है वो सेंट्रियोल इन द सेंट्रोजोम lie perpendicular to each other, in which it has organization like the cartwheel, cartwheel की तरह organization होता है उनका, इस तरह से वो अरेंज होते हैं, 2 सिलेंडर टाइप के होते हैं, ठीक है। while are made up of the 9 they are made up of the nine evenly spaced peripheral fibril of the tubulin protein। अच्छा, ये कैसे बने होते हैं जो हमारे सेंट्रोजोम है। 9 peripheral fibrils of the tubulin protein, tubulin protein के 9 peripheral fibril होते हैं, उनके थ्रू बने होते हैं। each of the peripheral fibril is a triplet, और ये बेसिकली यहाँ पे ट्रिपलेट होता है, वहाँ पे डबलेट था, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट है। ये क्या है, ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक, जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। Central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous, is called hub। जो central part है उसको हम hub बोलते हैं, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by the radial spokes made of the protein, जो कि basically connected होता है बाय द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक, जो कि मेड हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। द सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजेला स्पिंडल फाइबर्स गिव राइज टू द स्पिंडल apparatus during the cell division in the animals। Now nucleus, nucleus as a cell organelle was first discovered by the रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी in 1831 later material of the nucleus was stained by the basic dye was name given chromatin by the Fleming ने बेसिकली एक बेसिक डाई का यूज़ किया जिसकी वजह से आपका एसिडिक न्यूक्लिक एसिड आपका कलर्ड हो गया, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग ने किया था।
The interphase nucleus, basically जो nucleus of the cell when it is not dividing. Interphase क्या है? The portion where cell source are um, basically dormant activity. ठीक है. Highly extended and elaborated nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli. The electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of the two parallel membrane with the space between 10 to 50 nanometer, called as perinuclear space. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेसिकली रिवील करती है कि न्यूक्लियर जो एनवेलप होती है उसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है विद अ स्पेस बिटवीन देम, कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस. न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दैट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर. जो कि न्यूक्लियस अंदर होता है और साइटोप्लाज्म में होता है, उनमें डिफरेंस बैरियर बना देता है बेसिकली. द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस. जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस रहती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट, जो कि बेसिकली राइबोसोम भी बियर करता है. At a number of the places, nuclear envelope is interrupted by the minute pores. जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है इट इज़ बेसिकली इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर्स कई जगह पे. ठीक है. दैट आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स, जो कि बेसिकली फॉर्म होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन. उसकी दोनों फ्यूजन हो जाता है मेम्ब्रेन का, वहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं. दीज न्यूक्लियर पोर्स आर पैसेजेस थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ द आरएनए. और ये जो ये पोर बनती हैं जिसकी वजह से आरएनए और प्रोटीन मूव कर पाते हैं इन द बोथ द डायरेक्शन. इसीलिए वो दोनों साइड डायरेक्शन में आरएनए और प्रोटीन मूव करते हैं. द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म नॉर्मली देयर इज नो देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. जो बेसिकली नॉर्मली अगर आप देखें तो एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल. वेरिएशंस in the number of the nuclei are also frequent. You can recollect the organism have more than nucleus per cell. Uh, some of the mature cells even lack nucleus, जैसे एरेथ्रोसाइट्स हो गए मैमल्स में, सीव ट्यूब सेल्स हो गए. ठीक है. ऑफ द वास्कुलर प्लांट इनमें बेसिकली मैच्योर सेल में होता ही नहीं है. ठीक है. मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो होगा ही. वुड कंसीडर दी सेल्स एज लिविंग. क्या उनको लिविंग कंसीडर करोगे? न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस बेसिकली एंड क्रोमैटिन. न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होती है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कह लो, उसमें एक बेसिकली एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस या फिर क्रोमैटिन. न्यूक्लियोलाई और स्पेरिकल स्ट्रक्चर, बेसिकली ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है. कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस स्ट्रक्चर कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है. इट इज़ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोम. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियोलाई का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम क्या है. एक्टिव आरएनए सिंथेसिस का काम है. लार्जर मोर numerous nuclei are present in the cells actively carrying out the protein synthesis, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करता है. You may recall the interphase in nucleus has loose, its distinct, indistinct nature, network of the nucleoprotein fiber called as chromatin. जो बेसिकली तो हमारा इंटरफेस में जो न्यूक्लियस होता है वो अपना जो ओरिजिनल फॉर्म होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का क्रोमैटिन के फॉर्म में इतने टाइम होता है. बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. इन द प्लेस ऑफ द डिवीजन जो क्रोमैटिन कंटेन करता है डीएनए, सम ऑफ द बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन, सम ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए. ठीक है. ये बेसिकली एक क्रोमोसोम बनाता है. ठीक है. a single human cell has approximately 2 meter long thread and DNA distributed over 46 23 pairs chromosome. You will study about this in the detail. Packaging form of the chromosome in the class 12th. Every chromosome essentially has the primary construction or the centromer on the sides of which disc shaped structure called as kinetochores.
जो भी आपके क्रोमोसोम होते हैं वो एसेंशियली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स। ओके, आपका एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा उसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, ठीक। ऑन द साइड उसके किनारे, जैसे ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ये स्ट्रक्चर, ये हमारा जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसको हमने बोला सेंट्रोमियर। अब इसके साइड पे जो होगा, साइड साइड वॉल पे एकदम जो शेप होगा उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर आर प्रेजेंट बेस्ड ऑन द पोर्शन ऑफ द सेंट्रोमियर। ये बेसिकली सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पॉइंट। जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसके हिसाब से चार तरह के स्पोर्ट्स के चार तरह के क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। मेटासेंट्रिक होगा एक। मेटासेंट्रिक क्या है? मेटासेंट्रिक का मिडिल सेंट्रोमियर होगा फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म एंड मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, ठीक है। अब देखो एबनॉर्मलिटी शुरू होने जा रही है। सब मेटासेंट्रिक में क्या हो गया भैया, जो है थोड़ा सा खिसक गए मिडिल साइड को, ठीक है, resulting in order to short arm and one long arm. In the case of the acrocentric chromosome, centromere is situated। देखो ये सब मेटासेंट्रिक है। फिर एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, वो क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली, मतलब और सीरियस होने की कोशिश कर ली, पीछे चले गए, ठीक है। अब टीलोसेंट्रिक बेसिकली होता है वो टर्मिनल सेंट्रोम पे होता है एकदम, मतलब एंडिंग पे ही होता है, ठीक है, वो आपका टीलोसेंट्रिक है, ठीक है। Sometimes few chromosomes have non-staining secondary construction on the constant location give appearance of the small fragment called as satellite, ठीक है। कभी कभी कुछ पोर्शंस होते हैं जो कि स्टेनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन वो शो करते हैं गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड एज सैटेलाइट, सैटेलाइट का अपीयरेंस देते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल मेम्ब्रेन minute vessels and the micro bodies that contains the various enzymes are present in both the cell and the animal। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। Cilia and flagella are the hairs outgrowth of the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन की बेसिकली ये हेयर आउटग्रोथ किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन की होती है। डोंट बी कंफ्यूज फॉर द सेल मेम्ब्रेन और द सेल वॉल, दैट माइट बी क्वेश्चन मेड। The cells cilia are small structure। cilia basically कुछ small structure होते हैं which work like the oars, जो कि oars का काम करते हैं, causing movement of either of the cell or the surrounding fluid, जिसकी वजह से cell या फिर surrounding fluid का movement होगा। Flagella are comparatively longer, responsible for the movement of the cell, and the prokaryotic bacteria are also flagella, but these are structural। जो basically prokaryotic बैक्टीरिया होते हैं वो भी बेसिकली फ्लैजेला पोजेस करते हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होगा और जो हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम एंड द फ्लैजेला शो दैट दे आर कवर्ड with the plasma membrane, the core called exonyma possesses number of the microtubules running parallel to the long axis, ठीक है। कईयों आपके बेसिकली एक्सोनिमा होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनिमा यूजुअली हैज़ 9 पेयर्स, 9 पेयर्स डबलेट्स होते हैं एक्सोनिमा में, ठीक है, जो कि रेडियली अरेंज होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और पेयर ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड माइक्रो, कुछ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक। सच अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे। और इस तरह के अरेंजमेंट को, जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं 9+2 एरे, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्रिज, कुछ ब्रिजेस से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एंड इज इनक्लोज बाय द सेंट्रल शीथ, और सेंट्रल शीथ उसको इनक्लोज करती है, विच आर कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं। सी नाउ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी जब हमने देखा, द कोर इज कॉल्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर
और अंदर का जितना पोर्शन होता है जो कोर है ये पूरी, इसको हम एक्सोनिमा बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दे रखा है देयर core is called as axonema possesses a number of the micro, इसमें नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि रन करते हैं पैरेलल along the long axis। एक्सोनिमा हैज़ 9 पेयर ऑफ द डबलेट, यहाँ पे 9 पेयर ऑफ द डबलेट्स है। डबलेट्स हमारे ये हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 पेयर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 है और 9 की डबलेट्स है, मतलब पेयर है, इसीलिए उसे डबलेट बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule। वहाँ पे एक पेयर होता है centrally located microtubule, इसीलिए ये centrally located है, और ये radially arranged microtubules है। ठीक है, फिर है हमारा central tubules are connected by the bridges and is enclosed by the central sheath। जो central tube है वो basically bridges से एक दूसरे से connected है और enclosed होता है, एक सेंट्रल शीथ होती है। ठीक, सेंट्रल ब्रिज होता है और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में एक सेंट्रल शीथ होती है। ठीक है ना, एंड इज कनेक्टेड बाय द विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच। और ये जो सेंट्रल शीथ होती है ये हर ट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड हो रहता है। ये आप रेडियल स्पोक देख सकते हैं, ये रेडियल स्पोक है आपके। ठीक है, ये रेडियल स्पोक बेसिकली सेंट्रल शीथ से इन 9 पेयर्स ऑफ द ट्यूब्यूल, 9 + 2 इसीलिए बन जाता है, 2 अंदर एंड 9 पेयर बाहर। ठीक है, देयर आर 9 रेडियल स्पोक, 9 रेडियल स्पोक्स हैं। ठीक है, द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं, डबलेट्स एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं थ्रू द लिंकर्स। both the cilium and the flagellum emerge from the centriole like structure called basal body। ठीक है, और जो सीलियम और फ्लैजेलम है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से ही निकलते हैं जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, जो इंटर डबलेट्स होते हैं, डबलेट ब्रिज, ठीक है, ये बेसिकली लिंकर्स का काम करते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटर डबलेट ब्रिज को ही इन्होंने लिंकर्स का नाम दे दिया। ओके, नाउ सेंट्रोजोम एंड द सेंट्रियोल। अगर हम देखें सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल बेसिकली क्या है। सेंट्रोजोम इज द ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, सराउंडेड बाय द एमॉर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल, एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बेसिकली कुछ एमॉर्फस मटेरियल होता है वो सेंट्रियोल इन द सेंट्रोजोम lie perpendicular to each other, in which it has organization like the cartwheel। cartwheel की तरह organization होता है उनका, इस तरह से वो अरेंज होते हैं, 2 सिलेंडर टाइप के होते हैं। ठीक है, while are made up of the 9, they are made up of the nine evenly spaced peripheral fibril of the tubulin protein। अच्छा, ये कैसे बने होते हैं जो हमारे सेंट्रोजोम है। 9 peripheral fibrils of the protein, tubulin protein के 9 peripheral fibril होते हैं, उनके थ्रू बने होते हैं। each of the peripheral fibril is a triplet, और ये बेसिकली यहाँ पे ट्रिपलेट होता है, वहाँ पे डबलेट था। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट है। ये क्या है, ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस इज कॉल्ड हब। जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम हब बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय द रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ द प्रोटीन, जो कि बेसिकली कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक, जो कि हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, द सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजेला। स्पिंडल fibers give rise to the spindle apparatus during the cell division in the animals। Now, nucleus। Nucleus as a cell organelle was first discovered by the रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी in 1831। Later material of the nucleus was stained by the basic dye was given
क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने बेसिकली एक बेसिक डाई का यूज़ किया जिसकी वजह से आपका एसिडिक न्यूक्लियर एसिड आपका कलर्ड हो गया, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग ने किया था। The interphase nucleus, basically जो nucleus of the cell when it is not dividing. Interphase क्या है? The portion where cells are um, basically dormant activity, ठीक है। Highly extended and elaborated nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli. The electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of the two parallel membrane with the space between 10 to 50 nanometer, called as perinuclear space. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेसिकली रिवील करती है कि न्यूक्लियर जो एनवेलप होती है उसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है विद द स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दैट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर। जो कि न्यूक्लियस अंदर होता है और साइटोप्लाज्म में होता है, उनमें डिफरेंस बैरियर बना देता है बेसिकली। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस। जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस रहती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट, जो कि बेसिकली राइबोसोम भी बियर करता है। At a number of the places, nuclear envelope is interrupted by the minute pores। जो nuclear envelope होती है it is basically interrupted by the minute pores कई जगह पे, ठीक है। that are formed by the fusion of the two membranes, जो कि basically form होते हैं by the fusion of its two membrane। उसकी दोनों फ्यूजन हो जाता है मेम्ब्रेन का, वहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं। these nuclear pores are passages through which the movement of the RNA, और ये पोर बनती हैं जिसकी वजह से आरएनए और प्रोटीन मूव कर पाते हैं इन द बोथ द डायरेक्शन, इसीलिए वो दोनों साइड डायरेक्शन में आरएनए और प्रोटीन मूव करते हैं। द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म नॉर्मली देयर इज नो देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। जो बेसिकली नॉर्मली अगर आप देखें तो एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल। वेरिएशंस in the number of the nuclei are also frequent. You can recollect the organism have more than nucleus per cell. Some of the mature cells even lack nucleus, जैसे एरिथ्रोसाइट्स हो गए मैमल्स में, सीव ट्यूब सेल्स हो गया, ठीक है। ऑफ द वास्कुलर प्लांट इनमें बेसिकली मैच्योर सेल में होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो होगा ही। वुड कंसीडर दी सेल्स एज लिविंग, क्या उनको लिविंग कंसीडर करोगे? न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस बेसिकली एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होती है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कह लो, उसमें एक बेसिकली एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस या फिर क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलाई और स्पेरिकल स्ट्रक्चर, बेसिकली ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इट इज़ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियोलाई का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम क्या है। एक्टिव आरएनए सिंथेसिस का काम है। लार्जर मोर numerous nuclei आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करता है। You may recall the interphase in nucleus has loose, its distinct, indistinct nature, network of the nucleoprotein fiber called as chromatin। जो बेसिकली तो हमारा इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है वो अपना जो ओरिजिनल फॉर्म होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का क्रोमेटिन के फॉर्म में इतना टाइम होता है। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, सेल शोज स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम इन द प्लेस ऑफ द डिवीजन। जो क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए, सम ऑफ द बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन, सम ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए, ठीक है। ये बेसिकली एक क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। आ सिंगल ह्यूमन सेल्स हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड एंड डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 46 23 पेयर्स क्रोमोसोम। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन द डिटेल।
packaging form of the chromosome in the class 12th, where every chromosome essentially has the primary construction or the centromer on the sides of which disc shaped structure called as kinetochores. जो भी आपके क्रोमोसोम होते हैं वो essentially प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स। ओके, आपका एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा उसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, ठीक। ऑन द साइड ऑफ उसके किनारे, जैसे ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ये स्ट्रक्चर, ये हमारा जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसको हमने बोला सेंट्रोमियर। अब इसके साइड पे जो होगा, साइड साइड वॉल पे एकदम जो शेप होगा उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर आर प्रेजेंट बेस्ड ऑन द पोर्शन ऑफ द सेंट्रोमियर। ये बेसिकली सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पॉइंट। जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसके हिसाब से चार तरह के स्पोर्ट्स के चार तरह के क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। मेटासेंट्रिक होगा एक। मेटासेंट्रिक क्या है? मेटासेंट्रिक का मिडिल सेंट्रोमियर होगा फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म एंड मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, ठीक है। अब देखो एबनॉर्मलिटी शुरू होने जा रही है। सब मेटासेंट्रिक में क्या हो गया भैया, जो है थोड़ा सा खिसक गए मिडिल साइड को, ठीक है, resulting in order to short arm and one longer arm. In the case of the acrocentric chromosome, centromere is situated, देखो ये सब मेटासेंट्रिक है। फिर एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, वो क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली, मतलब और सीरियस होने की कोशिश कर ली, पीछे चले गए, ठीक है। अब टीलोसेंट्रिक बेसिकली होता है वो टर्मिनल सेंट्रोम पे होता है एकदम, मतलब एंडिंग पे ही होता है, ठीक है, वो आपका टीलोसेंट्रिक है, ठीक है। Sometimes few chromosomes have non-staining secondary construction on the constant location give appearance of the small fragment called as satellite, ठीक है। कभी कभी कुछ पोर्शंस होते हैं जो कि स्टेनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन वो शो करते हैं, गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड एज सैटेलाइट, सैटेलाइट का अपीयरेंस देते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल मेम्ब्रेन minute vessels and the micro bodies that contains the various enzymes are present in both the